ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنس پر سماعت آج ہونے جا رہی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں 3 رکنی بینچ ہے جو کہ نااہلی ریفرنس کی سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی کے 20 ایم این ایز کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے 3 روز میں نااہلی ریفرنس پر فیصلہ کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنس پر سماعت آج ہونے جا رہی ہے، اہم خبر ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 3 رکنی بینچ ہے جو کہ نااہلی ریفرنس کی سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی کے 20 ایم این ایز کو جواب جمع کرانے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 3 روز میں نااہلی ریفرنس پر فیصلہ کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنسز پر سماعت کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیں، اہم سماعت ہے جو کہ آج ہونے جا رہی ہے، اور چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت 3 رکنی بینچ ہے جو کہ نااہلی ریفرنسز کی سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی کے 20 ایم این ایز کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے 3 روز میں نااہلی ریفرنسز پر فیصلہ کرنا ہے۔ پی ٹی آئی کے منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنس پر سماعت، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت 3 رکنی بینچ نااہلی ریفرنس کی سماعت کرے گا۔ پی ٹی آئی کے 20 ایم این ایز کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ احمد نواز ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس اہم خبر کی مزید اپڈیٹ ان سے حاصل کریں گے۔ احمد نواز بتائے گا سماعت کب تک ہوگی اور مزید کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں جو پی ٹی آئی کے منحرف اراکین ہیں، جس میں 20 ایم این ایز ارکان اسمبلی ہیں اور پنجاب اسمبلی کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کو بھی آج طلب کیا ہوا ہے، اور الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے الیکشن کمیشن میں سماعت کرے گا، اور جو 20 ایم این ایز ہیں ارکان اسمبلی، ان سے الیکشن کمیشن نے گزشتہ سماعت پر جواب جمع کرانے کی ہدایت کی تھی۔ آج وہ جواب جمع کرائیں گے اور الیکشن کمیشن کو اس سے آگاہ کریں گے، اور جبکہ صوبائی اسمبلی جو پنجاب کے صوبائی اسمبلی ارکان ہیں، ان کو بھی آج طلب کیا ہوا ہے، اور ان سے بھی الیکشن کمیشن ان کو ہدایت کرے گا کہ وہ ان کو 1 ہفتے کا وقت دے گا، اس میں آپ اپنا جواب جمع کرا دیں، اور جس کے بعد کیونکہ الیکشن ایکٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے 30 دن میں فیصلہ کرنا ہے، اور جلد ہی اس کیس کو الیکشن کمیشن نے نمٹانا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد نواز۔ مزید اپڈیٹ بھی وقتاً فوقتاً آپ سے لیتے رہیں گے اور اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ نون لیگ کی حکومت نے عمران خان کے بیرونی سازش کے الزامات کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے کہ انکوائری کمیشن آزاد اور غیر جانبدار ہوگا، جبکہ کابینہ کی منظوری کے بعد کمیشن کے سربراہ کا اعلان کر دیا جائے گا۔ انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ انکوائری کمیشن کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا اور جھوٹے الزامات لگانے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ عمران خان کی کرپشن، چوری اور لوٹ مار کے بارے میں اتنا کچھ موجود ہے کہ ذاتیات پر بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور وہ انکوائری کمیشن جو منصفانہ طریقے سے اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو بیرونی ملک سازش کا ڈرامہ ہے، اس کے اصل کردار عمران خان صاحب، جو کاغذ لہرا لہرا کر صرف دوسروں پر الزام لگانے کے عادی ہیں۔ اس انکوائری کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا اور اس کے بعد جو بھی انکوائری مکمل ہوگی، جنہوں نے ملک کو اپنی جھوٹی سیاست کے لیے استعمال کیا، جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ تحریک انصاف نے غیر ملکی سازش پر حکومت کی کمیشن قائم کرنے کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہا کہ صرف آزاد عدلیہ کی جانب سے بنائے گئے کمیشن کو تسلیم کیا جائے گا۔ فواد چودھری اور فروغ حبیب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کمیشن کی کارروائی براہ راست دکھائی جائے۔ حکومت کے 2/3 وزیر ضمانتوں پر ہیں۔ موجودہ حکومت امپورٹڈ سازش کا حصہ ہے۔ ہمارا مطالبہ سپریم کورٹ کے تحت کمیشن کا قیام ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے الیکشن کمیشن سے آرٹیکل 63A پر عمل درآمد کا مطالبہ بھی کیا۔ آپ نے کہا کہ ہم کمیشن بنائیں گے، غیر ملکی سازش نہیں ہوئی ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ لانے کے لیے۔ ہم پہلے ہی آپ کے تحت کسی بھی کمیشن کو مسترد کر چکے ہیں۔ جو
तहरीक इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी और वो कमीशन होगा जो आज़ाद अदलिया के तहत इंडिपेंडेंट आज़ाद कमीशन होगा और जो ओपन हियरिंग करेगा। अगर ओपन हियरिंग होगी उस कमीशन में तो जो तहरीक इंसाफ है उस कमीशन को मानेगी। साइफर का मामला काबीना ने इसको जब सामने रखा तो एक फैसला सामने आया कि इसको पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में सामने रखा जाए, क्योंकि ये खुद उस इम्पोर्टेड रजीम चेंज जो है उस साजिश का हिस्सा है। मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के तहत आज़ाद कमीशन है। अब हमारा इलेक्शन कमीशन से भी ये मुतालबा है कि वो जो अपनी आइनी जिम्मेदारी है, जो आइन के अंदर आर्टिकल 63A है, बड़ी खुलेआम खिलाफ वर्जी हुई है 63A की, उसके ऊपर अमल दरामद करें। फराह खान के मामले पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार करेगी। तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया कि अगर फराह ने करप्शन की है तो केस क्यों नहीं बनाया जा रहा है, जबकि नून लीग ने PTI की तहरीक को गोगी बचाओ तहरीक का नाम दे दिया। उनके केसेस हैं उसको एक तीसरे से जोड़ना शुरू कर रहे हैं। अब वो तीसरे के ऊपर भी बज़ाहिर केस क्या है, मुझे तो समझ नहीं है अभी तक उनके ऊपर केसेस क्या है। तो वो डिफेंड तो वो खुद ही करेंगी, बट टू बी फेयर विद हर पहले इल्जाम तो पता हो ना कि उनको इल्जाम है क्या। 3 हफ्ते में जो ये बैरूनी मुल्क साजिश की गर्दान है, असल हकीकत इसकी गोगी बचाओ तहरीक उन्वान है। फराह गोगी ने इमरान खान साहब की ईमा पर इमरान खान साहब की नाक तले कई 100 करोड़ की करप्शन की। केसेस के ऊपर भी इमरान खान उन्हें डिफेंड नहीं कर रहे। इमरान खान डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि इनको आप जोड़ देते हैं उनकी बेगम के साथ। आप बुनियादी तौर पे क्या कर रहे हैं, आप मीडिया ट्रायल करना चाह रहे हैं बुशरा बेगम साहिबा का, जिनका ताल्लुक ही नहीं है सियासत से। सिर्फ फराह गोगी को बचाने के लिए जो आप तहरीक चलाने की ढोंग और तमाशा कर रहे हैं, वो इस इंक्वायरी कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट आने के बाद पाकिस्तान की आवाम के सामने जो दूध का दूध है और पानी का पानी है वो रखा जाए। फराह गोगी ने जो भी यहाँ से माल कमाया इमरान खान के बेनामी के तौर पे उन्होंने ये काम किया। मिस इन्फॉर्मेशन को 1 घंटा बैठी हैं और उन्होंने मेरे ख्याल को 40 मिनट जो है वो फराह खान के ऊपर बात की है और उनको भी नहीं पता कि उनसे कोई सवाल वहाँ पे नहीं पूछा किसी ने कि आखिर ये बताएं कि उनके ऊपर इल्जामात की फहरिस्त किधर है, उनके ऊपर केसेस किधर हैं, ताकि उसका वो जवाब दे सकें। फराह गोगी को 2019 में एमनेस्टी स्कीम के तहत 2019 में 32 करोड़ रुपए उन्होंने टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फराह गोगी की ब्लैक मनी को वाइट करवाया। फराह गोगी बचाओ तहरीक का तर्जुमान बना हुआ है और तमाम कराए के तर्जुमान जो पहले कहते थे फराह से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आज सुबह दोपहर शाम फराह गोगी की तर्जुमानी में कतारों के साथ लगे हुए हैं। वो पर्दादार खातून है, ना वो कभी बाहर निकली, ना उन्होंने मीडिया टॉक करनी है। इमरान खान की ये भी एक मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है कि उनको जो मुखालफ मिले हैं वो बहुत ही छोटे हैं। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फराह खान को दुबई से पाकिस्तान वापस लाने का फैसला कर लिया गया। नैब फराह खान के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात कर रहा है। PTI सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल करने का फैसला कर लिया गया है। सरदार हमीद की रिपोर्ट। फराह खान गोगी पर आमदन से जायद असासों और करप्शन के इल्जामात का मामला। हुकूमत पाकिस्तान ने फराह खान को दुबई से वतन वापस लाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक फराह गोगी पर जो इल्जामात हैं उनकी तफ्तीश के लिए इसकी मौजूदगी जरूरी है। फराह को दुबई से वापस लाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक फराह खान ने इमरान नियाजी की फ्रंट पर्सन का किरदार अदा किया, उनसे हकायक मालूम करने हैं। नैब टीम DG नैब लाहौर की सरबराही में फराह खान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात कर रही है। दूसरी जानिब PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजमीन के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात हासिल करने का भी फैसला कर लिया गया है। इन मुलाजमीन में ताहिर इकबाल, मोहम्मद नौमान अफजल, मोहम्मद अरशद और मोहम्मद रफीक शामिल हैं। इन मुलाजमीन के निजी अकाउंट्स में 2008 से 2022 तक जितनी रकूम आई है उनका रिकॉर्ड स्टेट बैंक से हासिल किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के जरिए रिकॉर्ड की फॉरेंसिक जांच पड़ताल होगी। FIA और FBR अपनी अपनी सतह पर रिकॉर्ड हासिल करके कार्रवाई करेंगे। पहला मार्का हम मार चुके, उम्मीद है कि दूसरी कामयाबियां भी जल्द ही होंगी। आसिफ अली जरदारी का नवाबशाह में कारकुनान से खिताब, कहा पाकिस्तान गरीब मुल्क है जिसे अमीर हम बनाएंगे, सारी दुनिया से गरीब के लिए लड़ रहा हूँ।
आप थोड़ा सा सब्र दिखाएं, सब्र करें। अभी मैंने पहला मार्का मारा है, अभी और थोड़े मार्के मारने हैं। इंशाअल्लाह मैं पाकिस्तान को एक अमीर मुल्क पहले भी बना रहा था जब मैं प्रेसिडेंट था, और अभी दोबारा इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक अमीर मुल्क बनाऊंगा। आप लोग सब कुछ को उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पहले किसी ने सोचा है। आपके दिलों ने, आपकी हिम्मतों ने, आपके वोटों ने मुझे यहाँ पहुँचाया है। मैं आपके जोर से दुनिया से लड़ता हूँ। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब के हलफ का मामला है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने हमजा शहबाज की हलफ बर्दारी का फैसला सुनाने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस भेजने का ऐलान कर दिया। कहते हैं सदर या गवर्नर के अलावा कोई हलफ नहीं ले सकता। लाडले के हाथों पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा यरगमाल बना हुआ है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मैंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया जिससे बहरान मजीद बढ़ जाता। गवर्नर या सदर के अलावा कोई हलफ नहीं ले सकता। बतौर गवर्नर जस्टिस जवाद हसन के खिलाफ रेफरेंस भेज रहा हूँ। हमने ये फैसला किया कि ये जस्टिस जवाद हसन साहब जो हैं, जिन्होंने ये इंतहाई गैर आईनी जो हरकत फैसला किया है, इनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और बतौर गवर्नर पंजाब मैं इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि लाडले के हाथों पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा यरगमाल बना हुआ है। शहबाज शरीफ के लिए इनके साहबजादे इम्तिहान बने हुए हैं। वो अपने बेटे के मामलात देखें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा इस वक्त यरगमाल हुआ हुआ है, एक अनोखे लाडले के हाथों। इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब की तरह सिंध में भी यही सूरत हाल हो। मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां पर ईद की छुट्टियों के बाद काम का पहला दिन है और अमूमन देखा यह गया है कि ईद के बाद सरकारी दफातर में हाजिरी कुछ कम ही होती है और दफ्तर आने वाले मुलाजमीन भी मिलने जुलने में दिन गुजार देते हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे राहिल हसन से। राहिल हसन बताएगा, ईद की छुट्टियों के बाद सरकारी दफातर में काम का पहला दिन है, हाजिरी तो यकीनन मुतासिर हो रही होगी। जी, आज ईद के बाद पहला वर्किंग डे स्टार्ट हो चुका है और इस्लामाबाद में जितने भी सरकारी दफातर हैं और प्राइवेट दफातर हैं वो खुल गए हैं। मामूलात ज़िंदगी दोबारा से बहाल हो चुके हैं। ईद के बाद लोगों ने अपने अपने दफ्तरों में पहुंचना शुरू किया है और अपनी रूटीन के जो मामलात हैं उनको संभालना शुरू किया है। मैं इस वक्त पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर तमाम जो सरकारी दफातर हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके दफातर अंदर हैं और यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन खासी तादाद में पहुंच रहे हैं, लेकिन उस तरीके से देखा जाए तो काफ़ी कम तादाद देखने में आ रही है, क्योंकि जो लोग अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए अपने अपने आबाई इलाकों में, अब दूर दराज इलाकों में जाते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ईद की खुशियाँ जो हैं वो ईद के दिन अपने प्यारों के साथ मनाए जाएँ। तो आगे वीकेंड भी आ रहा है, तो वीकेंड के साथ ही पहले से ही वो क्लब करके छुट्टियाँ जो है वो अपनी मंजूर करवा लेते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने प्यारों के साथ गुजारा जा सके। तो देखने में आ रहा है कि काफ़ी कम तादाद जो है वो सरकारी मुलाजमीन की ऐसी है जो यहाँ पर दफातर में पहुँच रही है। हाजिरी काफ़ी कम है। मंडे से ये हाजिरी जो है वो फुल देखने में आएगी जब तमाम लोग अपने अपने आबाई इलाकों से यहाँ पर दोबारा पहुँचेंगे। लेकिन अभी भी जो पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले जो मकामी लोग हैं वो सरकारी दफातर में और प्राइवेट दफातर में पहुँचना शुरू हो चुके हैं और मामूलात बहाल हो चुके हैं। जी, मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुकी है। बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए। चलते हैं लाहौर, जहां पर लाहौर हाई कोर्ट में आईजी पुलिस पंजाब को सूबाई असेंबली का शोकॉज देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होने जा रही है। अदालत ने नोटिस जारी करके सेक्रेटरी पंजाब असेंबली से जवाब तलब कर रखा है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, आईजी पंजाब की जानिब से दायर दरख्वास्त पे समाअत अब से कुछ देर बाद होगी और अपनी दरख्वास्त में उन्होंने पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी की जानिब से शो कॉज नोटिस जो जारी किया गया है उसको चैलेंज कर रखा है और अपनी दरख्वास्त में उन्होंने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद अली भट्टी को जो है बाकायदा फरीक बनाया है और अपनी दरख्वास्त में उनका मौक़िफ़ है कि जो पंजाब असम्बली में पुलिस फोर्स दाखिल होने पर पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी ने जो बाकायदा शो कॉज नोटिस जारी किया है और उसके अलावा स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने भी एक बयान में कहा है कि 3 माह की सज़ा देंगे हम आईजी पंजाब को और अदालत में उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है आईजी पंजाब ने कि फोर्स जो है वो पंजाब असम्बली में दाखिल ज़रूर हुई थी लेकिन वो डिप्टी स्पीकर के हुक्म पे दाखिल हुई थी और साथ ही उनका ये कहना था कि अदालत ने भी ये अहकाम जारी किए थे कि 16 अप्रैल को
ہر حال میں امن و امان قائم رکھنا ہے پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن اور سے جس میں 9 منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب کو جو ہے باقاعدہ جو منتخب ہونا تھا اور عدالتی حکم پہ ایسا کیا گیا، لہذا عدالت جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری کی جانب سے جو شو کاز نوٹس جو ہے آئی جی پنجاب کو جاری کیا گیا اس کو معطل کرے، اور آج جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان جو ہیں وہ کچھ دیر بعد اس اہم کیس کی سماعت کریں گے۔ جی کچھ دیر بعد سماعت ہونے جا رہی ہے، اہم کیس ہے۔ ٹھیک ہے فیصل خان، مزید اپڈیٹ بھی آپ سے لیں گے۔ رخ کریں گے ملتان کا، جہاں پر گرد آلود ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ درجہ حرارت 28 ڈگری پر پہنچ چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج ملتان میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ بیورو چیف ملتان جنید ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ جنید ملک، آپ سرکٹ ہاؤس پارک میں موجود ہیں، بتائیے گا محکمہ موسمیات کا کیا کہنا ہے؟ جی ہاں بالکل، اگر ملتان میں موسم کی بات کی جائے تو موسم جو ہے ملتان میں گرد آلود ہے، جبکہ درجہ حرارت جو ہے وہ 28 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سب زیادہ آج درجہ حرارت ہے ملتان میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ جائے گا۔ جو گرمی کی ایک شدت تھی، ایک لہر تھی، اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ رات سے گرد آلود جو ہوائیں ہیں چلنے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کی وجہ سے آج گرمی کی جو شدت ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس ٹائم بھی ہلکی ہلکی جو گرد آلود ہوائیں ہیں، کیونکہ ملتان کی پہچان ہی گرد ہے، تو اسی لیے گرد آلود جو ہوائیں ہیں وہ چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے ملتان میں بارش کی کسی قسم کی کوئی پیشن گوئی نہیں کی گئی، جبکہ ملتان کے گردن ہوا میں کبیر والا ہو گیا، اس کے علاوہ دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر رات گئے بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جب ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو شہریوں کا یہی کہنا تھا کہ کیونکہ ملتان میں گرد کی وجہ سے ہی زیادہ مشہور ہے اور گرد آلود ہوائیں اس کی جو ہے پہچان ہے، تو اسی لیے ملتان میں صرف گرد آلود ہوائیں ہی چلتی ہیں، جبکہ اس کی وجہ سے چلنے کی وجہ سے جو ڈسٹ الرجی والے پیشنٹ ہیں ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق جو تمام تر چیزیں ہیں اس سے بچاؤ کے لیے، کیونکہ ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے تو اس لیے بچاؤ کے لیے بھی اقدامات کرنے پڑتے ہیں، مگر کیا کریں ملتان میں جو بارش ہے وہ قسمت سے ہی ہوتی ہے، اور آج بھی جو محکمہ موسمیات ہے ان کی جانب سے ہی کہا گیا ہے کہ ملتان میں کسی قسم کی کوئی بھی بارش کی پیشن گوئی نہیں کی گئی۔ جی ملتان میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت شکریہ جنید ملک۔ پاکستان تحریک انصاف آج میاں والی میں بھرپور سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسہ جنرل بس سٹینڈ گراؤنڈ میں ہوگا، جس سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی میاں والی کے جنرل سیکرٹری کے مطابق جلسہ گاہ میں 70,000 کرسیاں لگائی جائیں گی۔ ادھر تحریک انصاف کے جلسوں کے جواب میں مسلم لیگ نون بھی آج اٹک میں میدان سجائے گی۔ مریم نواز جلسے سے خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کے جلسوں کے شیڈیول میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ مریم نواز کا 8 مئی کو اکاڑا میں ہونے والا جلسہ اب 23 مئی کو ہوگا، شانگلہ میں 7، جبکہ سوابی میں 11 مئی کو جلسے سے خطاب کریں گی۔ مریم نواز 15 مئی کو گجرات، 20 مئی کو سرگودا اور 23 مئی کو اکاڑا میں جلسہ کریں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مریم نواز یوم تکبیر پر 28 مئی کو بھاولپور میں بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کریں گے۔ اسٹیٹ بینک کے دفتری اوقات آج سے صبح 9 سے شام 6 بجے تک ہوں گے، جبکہ دفاتر صبح 9 سے 1 بجے تک عوامی لین دین کریں گے۔ ایک اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دیگر بینک اور مالیاتی ادارے بھی انہی اوقات کار کی پابندی کریں گے۔ بینک اور مالیاتی ادارے عوامی لین دین کے کم از کم اوقات ضرورت کے مطابق بڑھا سکتے ہیں۔ سابق حکومت نے عوام کے لیے معاشی گڑھے کھودے اور سارا بوجھ عوام پر ڈالا۔ پیٹرول قیمت میں ہر ماہ حکومت کو 102 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی سابق حکومت پر کڑی تنقید، کہا ہم کوشش کریں گے کہ پیٹرول کی قیمتیں برقرار رہیں۔ جو خان صاحب نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کرا تھا اس کے حساب سے آج 245 روپے پیٹرول کی پرائس ہونی چاہیے تھی، آج بھی اللہ کی مہربانی سے 145 روپے کی دے رہے ہیں، اور ہم پھر ایک مرتبہ یقین دلا رہے ہیں لوگوں کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جتنی کوشش کر سکیں گے کریں گے اور یہیں پہ پرائس رکھیں گے۔ اس مہینے کے اندر جو حجم ہے نقصان کا حکومت پاکستان کی جیب سے جو پیسے جائیں گے وہ 102 ارب روپیہ ہے۔ ہر جگہ پہ عمران خان کی حکومت اپنی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے مسائل چھوڑ کے گئی ہے۔ آج گیس کے سیکٹر میں 1500 ارب روپے کی لوڈ شیڈنگ کھڑی ہے، وہ 1500 ارب روپے مجھے عمران خان لا کے دے سکتے ہیں؟
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आटा महंगा तरीन मिल रहा है और महंगाई की शरह 13.4% पर जा चुकी है। हुकूमत से मईशत नहीं संभाली जा रही, वज़ीर ख़जाना अजीब बातें कर रहे हैं। PTI के रहनुमा हमाद अजहर का मिफ्ताह इस्माइल को जवाब, कहा वज़ीर ख़जाना कौम को बता दें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ानी है या नहीं। 70 से 80 रुपए किलो इस वक्त आटा जो है वो मार्केट में मिल रहा है कि 13.4% पे महंगाई की शरह जो है वो जा चुकी है। कैसे इस मईशत को जो है जो आपकी इस बेहंगम दौर के अंदर जो आपसे संभाली नहीं जा रही और उनके पहले एक माह के अंदर महंगाई की शरह में 10% इजाफा हुआ है। आप कौम को एक मरतबा बताएं कि आपने कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। 32 दिन का मैं स्टॉक छोड़ के गया था, 32 दिन का, जो पाकिस्तान की शायद पिछले 10 साल की तारीख में इतना कभी नहीं। उसके बावजूद किसान को डीजल मिलने में दिक्कत आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक ही दौरा किया। वो परवेज़ मलिक मरहूम के घर भी गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बगैर प्रोटोकॉल मजंग और समनाबाद पहुँचे और वहाँ सफाई के इंतजाम का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परवेज़ मलिक मरहूम के घर भी गए और अहले खाना से मुलाकात की। मस्जिद नबवी में होने वाली बेहुरमती का भी मैं गवाह हूँ। अगर हम एक्शन लेंगे तो कहा जाएगा सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लीगी कारकुनान से खिताब, कहा शहबाज शरीफ मेरे साथ वाले सेल में कैद थे। 84 मेंबरान असेंबली का कदम नहीं डगमगाया, पार्टी चट्टान की तरह खड़ी रही। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जुर्रत और शहबाज शरीफ के हौसले की दाद देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो कुछ वो जो वाक़या हुआ, जो बेहुरमती हुई, मैं गवाह, मैं वहाँ पे था। अगर हम मुकदमे बनाएंगे तो कहा जाएगा जी ये सियासी इंतकाम ले रहे हैं कि मैं कारकुन हूँ नवाज शरीफ का। मेरा जेल के अंदर भी जो है ख्याल रखा गया। नवाज शरीफ ने लंदन से और शहबाज शरीफ ने साथ वाली बैरक से। 84 हमारे मेंबर नेशनल असेंबली में थे, किसी का कदम नहीं डगमगाया। चट्टान की तरह जो है हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो खड़ी रही। ये हौसला हमें नवाज शरीफ की इस्तकामत ने दिया, मरियम नवाज की जुर्रत ने दिया और शहबाज शरीफ के हौसले की मैं दाद देता हूँ। महंगाई मौशी बदहाली का जिम्मेदार इमरान खान है। इमरान खान ने अपने चमचों माफियों की जेबें भरी हैं। अगर इमरान खान को मजीद काम करने दिया जाता तो मुल्क को मजीद खतरा लाहक होता। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी कहती हैं इमरान खान को आईनी तरीके से घर भेजा गया, अब वो इलेक्शन की तारीख का इंतज़ार करें। सिर्फ कुर्सी का रोना रो रहा है और उसके बाद वो लोगों को गलत कामों पर उकसा रहा है। जिस तरीके का सियासी स्ट्रगल इमरान खान कहता है कि वो कर सकता है या करना चाहता है, उसका हमें आज तक इमरान खान के किसी जलसे से अंदाज़ा नहीं हो सका। हर मौके पर उसने पाक फौज के लिए जिस तरीके का इम्प्रेशन कायम किया, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है एक सिक्योरिटी के इदारे को। शहबाज गिल की गाड़ी को मोटरवे पर हादसा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे का नोटिस लेकर तहकीकात का हुक्म दे दिया। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएँ। वज़ीर आज़म ने हादसे पर अफसोस और ज़ख्मियों से इजहार हमदर्दी किया। शहबाज गिल कहते हैं उनकी गाड़ी का पीछा करके जानबूझकर हिट किया गया, ये एक मंसूबे के तहत किया गया। शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि मुझ पर कातलाना हमला करवाने वालों को बताना चाहता हूँ कि अपने मौला और कौम की दुआओं की वजह से जिंदा हूँ। मैंने कल ही कहा था कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें कत्ल करवा देंगे, करवा लें, गद्दारी नहीं करूँगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ की गाड़ी इस्लामाबाद मोटरवे खानका डोगरा के करीब उलट गई थी, जिसके बायस गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद मामूली जख्मी हुए थे। MKM राब्ता कमेटी का इजलास खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत हुआ। PP नून लीग से मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए बनाई कमेटी में शामिल अरकान ने ब्रीफिंग दी। पूरे मुल्क खास तौर पर शहरी सिंध में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने पर गौर किया गया। सिंध में अवामी राब्ता मुहिम और ज़िमनी इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मशावरत की गई। इंतखाबात के लिए उम्मीदवार का नाम का ऐलान राब्ता कमेटी के हतमी मशावरत के बाद किया जाएगा। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद को बतौर कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया। इनामिया के मुताबिक रज़ा बाकिर की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे की मियाद 4 मई को ख़त्म हो गई। वफाकी हुकूमत ने मुर्तज़ा सैयद को 27 जनवरी 2022 में डिप्टी गवर्नर मुकर्रर किया था। 5 मई से मुर्तज़ा सैयद नए गवर्नर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं।
भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में नाम नहाद हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया गया। भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाजी मरासला दिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर पर नाम नहाद हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद करता है। कमीशन का मकसद मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती आबादी को बेख्तियार करना है। नई हदबंदियाँ मकबूजा इलाके के लोगों को मज़ीद कमज़ोर, पसमानदा और तकसीम कर देंगी और एक और कठपुतली हुकूमत के क़याम की राह हमवार करेंगी। तर्जुमान का कहना था कि जम्मू कश्मीर का तनाज़ा एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा है। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर है। मुल्की खुद मुख्तारी पर आँच नहीं आने देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का दो टोक ऐलान ड्रोन की तस्वीर शेयर करते हुए हुकूमत को खबरदार कर दिया। कहा किसी ऐसे मुआहदे की इजाज़त नहीं देंगे जिससे मुल्की खुद मुख्तारी पर आँच आए। PTI रहनुमा ने ट्वीट में साफ कह दिया कि हम प्राइम मिनिस्टर और उनकी काबीना को आगाह करना चाहते हैं। ऐसे मुआहदे पर गुफ्तगू के आगाज़ की कोशिश पर कौम सरापा एहतजाज होगी। मुल्की मईशत अमली तौर पर बगैर ड्राइवर के चल रही है, जबकि आरजी हुकूमत सिर्फ दिन गुजार रही है। बदीन में पानी की किल्लत के खिलाफ काश्तकारों ने एहतजाज किया और थरकोल रोड पर धरना दे दिया। धरने के बायस बदीन से थरपारकर और कराची जाने वाला ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। काश्तकारों का कहना है कि पानी की किल्लत के बायस ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं, मवेशी मरने लगे हैं। नहरों में पानी की फराहमी तक एहतजाज जारी रहेगा। रेनाला खुर्द में भाई ने मॉडलिंग करने पर बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सिद्रा इस्लामाबाद में मॉडलिंग करती थी। भाई इसको मॉडलिंग से मना करता था। सिद्रा ईद की छुट्टियों में आबाई घर रेनाला खुर्द में थी, जहां उसके भाई ने गैरत के नाम पर बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ आपको बताएं कि ज़मीन फटी ना आसमान गिरा। भारत में रेप का शिकार लड़की को पुलिस वालों ने दरिंदगी का निशाना बना डाला। वालिदैन के मुताबिक उनकी बच्ची रेप की FIR दर्ज कराने गई थी कि SHO समेत 6 एहलकारों ने हवस का निशाना बनाया। मोदी के भारत में जिनसी दरिंदगी की इंतहा। आए रोज खवातीन को हवस का निशाना बनाया जाने लगा। दरिंदे मुहाफिजों की पुष्ट पनाही में खवातीन को ज्यादती का निशाना बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गैंग रेप का शिकार 13 साला लड़की थाने में दरिंदगी का निशाना बन गई। मुतासरा लड़की के वालिदैन का कहना है कि वो थाने में रेप की FIR दर्ज कराने गई तो SHO समेत 6 एहलकारों ने इसे ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस हुकाम के मुताबिक एहलकारों को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। भारत में आए रोज खवातीन को हवस का निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी 18 साला मुस्लिम नर्स के अस्पताल में रेप का वाकया पेश आया था। उधर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी है। एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। कश्मीरी आवाम ने खुशी का त्यौहार बंदूक के साए तले गुजार दिया। काबिज फौज के श्रीनगर समेत मुख्तलिफ अजला में घर घर छापे। कश्मीरी आवाम घरों में महसूर है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। कश्मीरी आवाम ने खुशियों का त्यौहार खौफ के साए तले गुजार दिया। भारतीय फौज ने ईद के तीसरे रोज भी मकबूजा वादी का मुहासरा किए रखा। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ अजला में काबिज अफवाज के घर घर छापे। शहरियों को घरों से बाहर निकलने से रोक दिया। खवातीन और बच्चों को हिरासा किया गया। मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम और इंसानी हुकूक की पामाली पर आलमी इदारे खामोश हैं। रूस यूक्रेन जंग से मुतासरा शहर मारियापोल से शहरियों के इनखला का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मज़ीद लड़ाई के पेश नज़र शहरों के इनखला के लिए तीसरा ऑपरेशन आज होगा। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 200 शहरी भी स्टील प्लांट के बंकरों में पनाह लिए हुए हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि जंग से मुतासरा शहरों को जहन्नुम से निकालने के लिए पूरी कोशिश की जानी चाहिए। जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी शहरों को महफूज रास्ता देने के लिए रजामंदी जाहिर करते हुए जंगजुओं के हथियार डालने पर जोर दिया। रूसी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा को मारियापोल में फतह के बाद वसी सनती मकाम सील करने का हुक्म दे रखा है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमलों का सिलसिला ताहाल जारी है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस की जानिब से गोलाबारी और स्टील वर्क्स पर कंट्रोल की कोशिशें जारी हैं।
मकबूजा फ़लस्तीन में इसराइली बर्बरियत जारी है। सहूनी फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा पर चढ़ाई कर दी। तशद्दुद से दर्जनों नमाजी जख्मी हो गए। ख़वातीन और बच्चों पर शेल भी फायर किए गए। अफगानिस्तान में सैलाब से तबाही 20 अफराद जान से गए, 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। कंधार, हेलमंद, हेरात, बदखुशां में बड़े पैमाने पर नुकसान। तूफ़ानी बारिशों से कच्चे मकानात बह गए, सड़कें डूब गईं, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ। सुबह कंदूस, मैदान वर्देक, बगलान में आंधी से दरख्त और पोल्स उखड़ गए। तालिबान हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा कई लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान में सैलाब से जानी और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि अफगानिस्तान में पहले से जारी इंसानी बहरान में शिद्दत का खदशा है। OIC मुतासरा अफगान अवाम की मदद की कोशिशों को तेज़ करे। बर वक्त इकदाम ना हुए तो नुकसानात बढ़ने का ख़तरा है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान की मदद का प्रोग्राम शुरू करे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम मुश्किल घड़ी में अफगान अवाम के साथ हैं और उनकी हर मुमकिन इमदाद करेंगे। अफगानिस्तान में मुतासरीन के लिए हंगामी इमदाद भिजवा रहे हैं। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं। आपके हाथ की खास चाय कैसे छोड़ सकते हैं? All new Higher Digital Inverter Plus, real freshness expert. मेन सत्याना रोड की प्राइम लोकेशन पर डिफेंस सिटी फैसलाबाद, डी ग्राउंड से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर 1 साल की आसान अक़सात की स्पेशल ऑफर सिर्फ 25% एडवांस पर। आज बुक करवाएं। फौरी कब्जा, फौरी रजिस्ट्री, तमाम जदीद रिहायशी सहूलियात पहले से मौजूद हैं। Come to Defense City फैसलाबाद and live happily ever after. डिफेंस सिटी फैसलाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। फौरी आए, फौरी पाएं। डिफेंस सिटी, अ प्रोजेक्ट बाय अब्राहमान ग्रुप। रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं। All new Higher Digital Inverter Plus, real freshness expert. आपके हाथ की खास चाय कैसे छोड़ सकते हैं? किसी भी इस्लामिक बैंक में रोशन डिजिटल अकाउंट खोलकर कामयाबी के सफर में शामिल हो जाएं। वेलकम बैक। खबर दें आपको कि इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हो गया। पुलिस ने 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। झगड़े के बाद पुलिस और इंतजामिया ने पार्क को बंद कर दिया। झगड़े के बायस बाराकाऊ से कश्मीर चौक तक बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। सरगोदा में ट्रैफिक हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 21 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसा तहसील शाहपुर में पेश आया, जहां मुसाफिर वैन, रिक्शा और कार आपस में टकरा गईं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नवाबशाह के करीब गांव में आग लग गई, जिसने कई मकानात को अपनी लपेट में ले लिया। 12 साला बच्ची झुलस कर जाँ बहक हो गई। आग लगने से मुतअद्दिद मवेशी भी जलकर हलाक हो गए। फायर ब्रिगेड और इलाका मकीनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पाकिस्तानी को पहमा शहरोज काशिफ का एक और एजाज़, पाकिस्तानी परचम दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी पर लहरा दिया। शहरोज काशिफ नेपाल की 8000 से बुलंद चोटी सर करने वाले दुनिया के कम उम्र को पहमा बन गए। फुटबॉल की दुनिया का रुख करेंगे, जहां पर रियल मैड्रिड ने यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी समेटी है। मेगा इवेंट का फाइनल 29 मई को लिवरपूल और रियल मैड्रिड के दरमियान होगा। Foden удар!
удар, и получилось очень опасно. Фил Фоден. Куртуа выручает свою команду. Вот и Фоден. Первый же свой момент. Рыв уже намечается небольшие между линиями. Передача под левым. Морец! Седьмой мяч. 1-0. 5-3. Сити забивает важнейший мяч в этом. Реал забивает 2 за 2 минуты. Ничья по сумме двух матчей. Сумасшедший дом на Сантьяго Бернабеу. कराची में दाऊद फाउंडेशन के तहत ऑनलाइन बिजनेस से मुतालिक नुमाइश का एहतमाम किया गया। मैग्नीफायर सेंटर में होने वाली नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। इवेंट एग्जीक्यूटिव का कहना था कि नुमाइश का मकसद लोगों को छोटे ऑनलाइन कारोबार से मुतालिक आगाही फराहम करना है। We are here to promote them. हमारा एक बेसिकली TDF मैग्नीफाइंग सेंटर का एक हमारा बेसिक पर्पस, जैसे हमने इनफॉर्मल लर्निंग किया है तो उसका मकसद ये है कि हम एंटरप्रेन्योर को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा जो बेसिकली जो एक स्क्रैच से अपना स्टार्ट करते हैं, वी जस्ट वांटेड टू प्रमोट देम एंड उनको हमने यहाँ पे एक स्पेस दिया है यहाँ पे और हम उनको होस्ट कर रहे हैं। नुमाइश में शरीक खवातीन ने इवेंट को सराहा। ये सारी ज्वेलरी है, ऑल इम्पोर्टेड एंड ऑल यूनिक, लाइक ये आपको कहीं और नहीं मिलेगी पेजेस पे, एंड ये सब भी इम्पोर्टेड है एंड स्टेनलेस स्टील है, सो बेस्ट क्वालिटी है। सो डू सपोर्ट माई स्मॉल बिजनेस। सी हमारे पास ये सारी प्योर सॉइल सेंटेड कैंडल्स हैं और इसमें हमारे पास जितने भी सेंटेड कैंडल्स के नाम हैं वो सब जो है हमारे 70s 80s के पाकिस्तानी जो आइकॉनिक लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं उनके आफ्टर हमने नेम किए। नुमाइश में बच्चों के कपड़े और खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल फितर की तातीलात ख़त्म हो चुकी हैं। मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। ईद के बाद बैंक्स के औकात कार भी तब्दील कर दिए गए हैं। मज़ीद जानेंगे यासिर सलीम से, जो कि शारा फैसल पर मौजूद हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल ईद उल फितर की तातीलात ख़त्म हो गई हैं और मामूलाती ज़िंदगी मुल्क भर की तरह कराची में भी जो है वो बहाल हो गया है। हम आपको बताए चलें कि तमाम तर जो तालीमी इदारे हैं, ख़ासतौर पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुल चुकी हैं, लेकिन कराची के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें जो अभी तालीमी सेशन है, कुछ स्कूल्स के अंदर तो जो है वो शुरू हो गया है, लेकिन ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं उन्होंने छुट्टियां दे दी थी, तो जो स्कूल्स का सेशन है वो पीर से शुरू होगा। हम आपको बताए चलें कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया था कि जी बैंक्स के जो वर्किंग डेज़ हैं उनको जो है तब्दील कर दिया गया है और अब संडे जो है वो सैटरडे भी जो है वो वर्किंग डे हुआ करेगा। जैसे पहले हफ्ते में 5 दिन काम होता था, अब जो है वो 6 दिन होगा। रमज़ान मुबारक में जो है वो बैंक सुबह 8:30 बजे के करीब खुल रहे थे, लेकिन अब बैंक के औकात कार जो है वो तब्दील कर दिए गए हैं और बैंक सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक जो है वो खुलेंगे और 1 से लेके 2:30 बजे तक का जो है वो खाने का और नमाज का वक्फा जो है वो दिया जाएगा। इस वक्त तो मौजूद है शारा फैसल पे ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है। बैंक्स खुल चुके हैं, तमाम तर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो खुल चुके हैं, ब्रोकेज हाउसेज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और तमाम तर जो मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं वो भी खुल चुकी हैं और साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो भी खुल चुके हैं। हम आपको बताते चलें कि मामूलाती ज़िंदगी शहर भर में जो है वो बहाल हो चुके हैं। हुकूमत की जानिब से जो है वो छुट्टियां दी गई थी। बेहतरीन तरीके से कराची के शहरियों ने जो है वो छुट्टियों को एंजॉय किया। पहले दिन जो है वो ईद मनाई, उसके बाद दूसरे दिन अपने रिश्तेदारों के यहाँ जो है गए और तीसरे दिन जो है वो बच्चों को घुमाया, शाम में बच्चों के साथ जो है वो एंजॉय किया। जो छुट्टी के जो दिन थे बेहतरीन तरीके से जो है वो लोगों ने कराची के अंदर जो है वो सेलिब्रेट किए हैं। अब जो है वो तमाम तर शारा फैसल पे जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो बैंक हैं, ऑफिसेज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सब जो है वो खुल चुके हैं। लेकिन हम आपको बता चलें कि शारा फैसल पे बड़ी तादाद में जो है वो प्रोफेशनल अकाउंटिंग के कॉलेजेस भी हैं, वो भी जो है वो खुल गए हैं और मामूलाती ज़िंदगी कराची में भी ईद की छत बहाल हो गया है। जी, मामूलाती ज़िंदगी बहाल हो चुकी हैं। बहुत शुक्रिया यासिर सलीम। गर्म मौसम में सयाहों ने जन्नत नज़ीर वादी का आगान का रुख कर लिया। दिलफरेब वादी में तफरीह के लिए आने वालों को रश से बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी इंतजाम किए। दिलकश नज़ारे, हसीन मौसम और खूबसूरत पहाड़। गर्म मौसम में सयाह मानसरा की वादी नारान कागान पहुँच गए।
ठंडी हवाएं और दिलफरेब मनाजिर ने यहाँ आने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया। इट वॉज रियली ब्यूटीफुल। नारान तक बहुत खूबसूरत था। पाकिस्तान से बाहर जाने से पहले आप पहले पाकिस्तान की खूबसूरती को देखें, आई विल प्रेफर दैट। और नारान से आगे बाटाकुंडी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। इंतजामिया की जानिब से सयाहों के लिए झील रोड को खोलने के इंतजाम भी मुकम्मल किए गए। अल्लाह का फजल से हमारी अभी मशीनरी लगी हुई है झील रोड पे, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। 6 माह से बंद वादी कागान की रौनकें बहाल होने पर मकामी लोगों का रोजगार भी खुल गया, जिस पर वो काफी खुश दिखाई देते हैं। जिला बाजोड़ का खूबसूरत और सयाहती मकाम रागान डैम सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। सर्द मौसम और यकबस्ता हवाओं में हसीन मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होने सयाह यहाँ का रुख कर रहे हैं। जिला बाजोड़ के तहसील सलारजे में वाक़े रागान डैम सयाहों का पसंदीदा तफरीही मकाम है। ईद के त्यौहार पर बाजोड़, दिर और मोहमन के मुख्तलिफ इलाकों से हजारों सयाहों ने खूब लुत्फ उठाया। पुरसुकून माहौल में मोटर बोट पर सैर व तफरीह का अलग मजा है। सयाह खूबसूरत मकाम की दीवाने हो गए। लोग वो काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह ईद बहुत अच्छी तरीके से लोग मना रहे हैं और बाजोड़ में इंशाल्लाह अमन व अमान की वो सूरत हाल बरकरार है। अमन व अमान की बहाली के बाद रोजगार के मौके मिलने पर मकामी अफराद भी खुश हैं और खूबसूरत तफरीही मकाम पर आए सयाहों के लिए खाने पीने का भरपूर इंतजाम किया गया। बाजोड़ में मुकम्मल अमन अमान की बहाली पर अवाम ने सुख का सांस लिया है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला पुंछ में सयाहती मकाम छोटा गला पर सयाहों ने डेरे जमा कर लिए और सरसब्ज़ वादी और हरे भरे दरख्तों ने तफरीह के लिए आने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया। जन्नत नज़ीर वादी आज़ाद कश्मीर में सयाहों का रश। पूंछ के सयाहती मकाम छोटा गला में सयाहों की मौज मस्तियां, बच्चे झूले झूल कर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं तो बड़े कश्ती रानी करते दिखाई दिए। कश्मीर की जन्नत है, छोटा गला झील और मैं चाहती हूँ पूरी दुनिया की झील। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। न्यूज़ 1 के साथ